हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल tut.com एंड here we are going to start with the NCERT line by line series of second chapter of physics, that is human eye। इससे पहले हम लोग केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपकी कंप्लीट करवा चुके हैं ऑलरेडी चैनल पे। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी वीडियोस तो आप प्लेलिस्ट पे रिडायरेक्ट कर सकते हैं ऊपर आई बटन के माध्यम से। और आज हमारा फर्स्ट पार्ट होगा ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारी आई कैसे वर्क करती है और कैसे डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिना होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर या फिर नेचर के अंदर। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत कम है इस चैप्टर से। हार्वर्ड फिजिक्स इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल, है ना। बट दिस इज अ कॉम्बो ऑफ बायो एंड फिजिक्स, तो दैट इज वाई यहाँ पे न्यूमेरिकल बनने के चांसेस बहुत बहुत कम होते हैं। सिर्फ एक पावर के ऊपर न्यूमेरिकल बन सकता है। सो दैट इज वाई आई विल हाईली रिकमेंड यू कि जिन बच्चों से फिजिक्स में न्यूमेरिकल नहीं हो तो इन चैप्टर्स को मत छोड़िए। तो शुरू करते हैं ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड के साथ। So you have studied in the previous chapter about refraction of light of by lenses. You also studied the nature, position, and relative size of image formed by lenses. How can these ideas help us in the study of human eye? The human eye uses light and enable us to see the world around us. It has a lens in structure. What is the function of lens in the human eye? तो क्या होगा, converge करवाना rays को। How do the lens used in the spectacle correct defect of the vision? Let us consider these questions in this chapter. We have learned in the previous chapter about light and some of its properties. In this chapter, we shall use these ideas to study some of the optical phenomena in nature. We shall also discuss about rainbow formation, splitting of white light in the blue color of the sky. So, the very first topic and the very important topic of chapter is the human eye, जहाँ से question बनने के chances होते हैं 50 to 70%. The human eye is one of the most valuable and the sensitive sense organ. It enables us to see the wonderful world and the colors around us. On closing the eye, we can identify objects to some extent by the smell, taste, sound they make or by touch. It is, however, impossible to identify color by closing the eyes. Thus, of all the sense organs, the human eye is most significant one, as it enables us to see the beautiful, colorful world around us. द ह्यूमन आई इज लाइक अ कैमरा, इवन द बेस्ट कैमरा जो कि आज तक कोई ह्यूमन नहीं बना पाया ना कभी बना पाएगा, इज द ह्यूमन आई। इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म्स एन इमेज ऑफ अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड रेटिना। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या होता है, इसकी एक बैक में स्क्रीन होती है जहाँ पे इमेज बनती है, दैट्स कॉल्ड रेटिना। लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। तो कॉर्निया इज द फर्स्ट इंटरफेस, फर्स्ट सरफेस है जिसके थ्रू लाइट टकराती है आपकी ह्यूमन आई में एंटर करने के लिए। तो कॉर्निया इज अ ट्रांसपेरेंट लेयर थ्रू विच ऑल द लाइट कमिंग फ्रॉम द outside or external environment enter into the human eye. It forms a transparent bulge on the front of surface of eyeball as shown. The eyeball is approximately spherical in shape with a diameter of about 2.3 centimeter. Most of the reflection from the light rays entering the eye occur at the outer surface of the cornea. ठीक है, तो जो रिफ्लेक्शन हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, आउटर सर्फेस पे हो रही है, इनर में नहीं होती है। ठीक है, the crystalline lens merely provide the inner finer adjustment of focal length required to focus an object at different distances on the retina. तो जो लेंस का काम है वो क्या है, फोकस करवाना लाइट को। We find a structure called iris behind the cornea. Iris is a dark muscle diaphragm that controls the size of pupil. तो iris is a muscle जो कि pupil के size को control कर रही है, and pupil is that structure which controls the amount of light to enter in the human eye. कि आइज को कितनी लाइट की जरूरत है, दैट इज प्यूपिल कंट्रोल करता है, और प्यूपिल को आइरिस कंट्रोल करती है। द प्यूपिल रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ आई लाइट एंटरिंग द आई। द आई लेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना। तो रेटिना के ऊपर जो इमेज बनती है वो इन्वर्टेड होती है, बट आपको तो सीधा दिखता है क्योंकि ऑप्टिक नर्व उसे कैरी करती है ब्रेन तक और ब्रेन से सीधा करके दिखाता है आपको। द रेटिना इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग एनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल जो कि किसके ऊपर होते हैं, रेटिना के ऊपर पड़े हुए होते हैं, एंड द लाइट सेंसिटिव सेल्स आर नेम्ड एज रोड्स एंड पॉन्स। ठीक है, ये लाइट सेंसिटिव होते हैं, दीज आर लाइट सेंसिटिव एंड दीज आर कलर सेंसिटिव। ठीक है, कौन सा आपको कलर प्रोवाइड करता है, स्किन के कौन बहुत सारे कलर के हो सकते हैं, तो उससे याद कर लीजिए, कौन फॉर कलर एंड रोड इज फॉर द लाइट इंटेंसिटी, मतलब कितनी डार्क होनी चाहिए, कितनी लाइट होनी चाहिए इमेज, वो ये सेंस करता है। द लाइट सेंसिटिव सेल्स गेट एक्टिवेटेड ऑन द इल्यूशन एंड जनरेट इलेक्ट्रिक सिग्नल। तो जैसे इस पे लाइट जलते तो एक्टिवेट होते तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करना शुरू करते हैं। These signals are sent to brain by optic nerve, then optic nerve इसे carry करती है। The brain interprets this signal and finally process the information so that we perceive object as they are। और हमारे को brain वैसे ऑब्जेक्ट को दिखाता है जैसे वो पड़ा हुआ होता है। तो अगर हम पार्ट ट्रेस करने बैठे तो सबसे पहले किस पे लाइट जाती है, किस पे जाती है, जैसे यहाँ पे दो चीजें और लिखी हुई है। एक है यहाँ पे एक्वस ह्यूमर,
और एक है विट्रस ह्यूमर। तो एक्वस ह्यूमर जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट, और विट्रस ह्यूमर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक्वस ह्यूमर बेसिकली प्यूरिफिकेशन में हेल्प करता है, क्लिनजिंग ऑफ आई में हेल्प कर रहा है आपको, ठीक है। ये क्लीन करता रहता है आईज को आफ्टर सम टाइम। जब आप पलक झपकते हो तो इतने में आपकी आंखें साफ हो जाती है, तो एक्वस ह्यूमर चेंज हो जाता है पूरा। जबकि जो विट्रस ह्यूमर होता है, विट्रस ह्यूमर का काम होता है, देयर आर डिफरेंट फंक्शंस ऑफ विट्रस ह्यूमर, जैसे कि प्रोवाइड्स शेप टू आई, ठीक है। उसको इसका फंक्शन होता है इट एब्जॉर्ब ऑल एक्स्ट्रा रेज। एक फंक्शन होता है इट प्रिवेंट्स मल्टीपल रिफ्लेक्शन, इट्स प्रिवेंट मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ताकि बार बार एक चीज की रिफ्लेक्शन ना हो हमारे आईज में। तो ये चीजें आपका विट्रस ह्यूमर कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। दिस इज विट्रस ह्यूमर के फंक्शन है। तो अगर जब मैं एक फ्लोचार्ट बनाने की ट्राई करूँ कि लाइट कैसे पाथ ट्रेवल कर रही है हमारी आईज में, जैसे सपोज बोर्ड पूछे तो मैं ड्रॉ अ फ्लोचार्ट टू रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ लाइट। तो क्या करोगे, सबसे पहले आपका आएगा कॉर्निया, कॉर्निया से लाइट जाएगी प्यूपिल पे, जिसका साइज करेगी आइरिस कंट्रोल। आइरिस के बाद आपके पास आएगा सीधा लेंस। अब लेंस के लिए हमारे पास होती है सिलरी मसल्स, क्योंकि देखो लेंस को बड़ा होना है छोटा होना है ना। देन इसके बाद आपकी जो होगी रेटिना, रेटिना से थ्रू ऑप्टिक नर्व, एंड ऑप्टिक नर्व से ब्रेन, एंड आपको इमेज दिख जाएगी। अब जो लेंस होता है, देखिए अगर जो मैं आपको बताऊं, जो आपका लेंस होता है वो या तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा या रिलैक्स करेगा। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो कब कॉन्ट्रैक्ट तब करेगा जब उसे जब उसे नियर ऑब्जेक्ट को देखना होगा। इस टाइम पे उसकी फोकल लेंथ छोटी हो जाती है, ठीक है। बट अगर जो उसको दूर वाले ऑब्जेक्ट को देखना है तो वो रिलैक्स करेगा, सॉरी, क्योंकि आप देखिए जब आप स्ट्रेस कब डालते हो, जब आपको कोई चीज पास से पढ़नी है तो अब आपकी आंखों में स्ट्रेस पड़ता है ना, तो इसका मतलब उसमें हमारी लेंस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और फोकल लेंथ डिक्रीज हो रही है, जबकि यहाँ पे फोकल लेंथ आपकी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो बोर्ड पूछता है कई बार। देन पावर ऑफ अकोमोडेशन, मतलब कितनी एबिलिटी है हमारी आईज की कि वो कितना दूर तक देख सकती है। सो द आई लेंस इज composed of a fibrous jelly like material. Its curvature can be modified to some extent by the ciliary muscle. Ciliary muscle is responsible for the changing of curvature of your eye lens. The change in the curvature of eye lens does change its focal length. When the muscle are relaxed, the lens becomes thick, thus the focal length increases. रिलैक्स है, फार ऑब्जेक्ट है, फोकल लेंथ आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ये हम लिख चुके हैं ऑलरेडी। The increase in the curvature of eye lens. The eye lens then become thicker. Consequently, the focal length of eye decreases. This enables us to see the nearby object. ठीक है. The ability of eye lens to adjust its focal length is called power accommodation. Very important definition. कि हमारी आई लेंस की कहाँ तक एबिलिटी है देखने की, अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की, उसे हम लोग पावर अकोमोडेशन कहते हैं। हाउएवर द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस कैन नॉट बी डिक्रीज बिलो अ सर्टेन मिनिमम लिमिट। तो एक मिनिमम लिमिट है, उससे नीचे फोकल लेंथ नहीं जा सकती। ट्राई टू रीड अ प्रिंटेड पेज बाय होल्डिंग इट वेरी क्लोज टू योर आई, यू माइट सी द इमेज being blurred or feel strained in the eye. To see an object comfortably or distinctly, you must hold it at about 25 centimeter from your eyes. तो near distance कितना हो गया आपका आइज का? The near distance of your human eye is 25. ठीक है। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्टेन इज कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो इसे हम लोग लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी कहते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। It is also called the near point of human eye. For the young adult with a normal vision, the near point is about to 25 centimeter. The farthest point upon which the eye can object see clearly is called the far point of eye. It is infinity for human eye. You may note that the normal human eye can see object clearly between 25 to infinity. Sometimes the crystalline lens of people at the old age become milky and cloudy. This is called cataract. The condition is called cataract, जिसे आप लोग हिंदी में मोतिया कहते हैं। This condition partially or completely loss of vision. It is possible to restore the vision through a cataract surgery. तो इसमें क्या होता है, कैटरेक्ट के ऊपर से एक लेयर हटा दी जाती है, जिसके बाद आपको बिल्कुल साफ दिखना शुरू हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जहाँ से एक पक्का 2 या 3 नंबर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, फॉर श्योर है, आप 100% लिखवा लीजिए, दिस इज फॉर श्योर।
Defects of vision and their correction. Sometimes the eye may gradually lose its power of conversation. In such a condition, the person cannot see the object distinctly and comfortably. The vision, अच्छा distinctly का मतलब है अलग अलग. Suppose आपके सामने दो चीजें रखी हुई है तो आपको दो एक ही दिख रही है. That is not distinctly. Distinctly मतलब आप distinguish कर पा रहे हो दोनों में. The vision become blurred due to the reflective defects of the eye. There are mainly three common reflective defects of vision. Mainly है, इसके अलावा बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है. One is myopia, जिसे आप लोग near sightedness कहते हैं. Then is hypermetropia, जिसे आप लोग far sightedness कहते हैं, जहाँ पे आप लोग दूर का देख पाते हो, पास का नहीं. और इसे आप प्लस बायोपिया कहते हो, जहाँ पे आप लोग दोनों का ही नहीं देख पाते, एक्चुअली आपकी मसल्स वीक हो जाती है आइस की. These defects can be corrected by using a suitable spherical lens of appropriate power. We discuss below the defects and their correction. ठीक है. तो ये the first defect myopia और near sightedness. A person with myopia I can see nearby object very clearly. ठीक है, nearby देख सकता है but far नहीं देख पाएगा. But cannot see the distinct object distinctly. A person with this defect has a far point nearer than infinity. Such a person may see clearly up to a distance of few meters. In myopia eye, the image of a distant object is formed in front of a retina. So instead of retina बनने के बजाय रेटिना से पहले आपकी इमेज बन जाती है. द डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू द, अब इसका कॉजेज क्या है, क्यों क्यों ये हो सकता है. देयर आर टू कॉजेज जो कि आपके दिए हुए. सबसे पहले तो एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, मतलब आपकी फोकल लेंथ का डिक्रीज हो जाना. एनलॉगेशन ऑफ आई बॉल, जो आई बॉल होती है उसका साइज बड़ा हो जाता है और फोकल लेंथ का साइज छोटा हो जाता है. दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉनकेव लेंस. ठीक है, कॉनकेव लेंस है तो पावर कैसी होगी उसकी, नेगेटिव. ठीक है, कॉनकेव लेंस की पावर कैसी होती है, नेगेटिव. दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर. जो आपकी फिगर है ये आपकी नॉर्मल आई है, ये डिफेक्टेड आई है और ये करेक्टेड आई है. ठीक है, will bring the image back on the retina and thus the defect can be corrected. Next is hypermetropia, far sightedness, जहाँ पे आप दूर का अच्छे से देख पा रहे हो बट पास का नहीं देख पाओगे. A person with hypermetropia can see a distinct object clearly but cannot see, वहाँ distant था, ठीक है, मैं distinctly का difference बता रहा था आपको क्या होता है मतलब. Cannot see nearby object distinctly, ठीक है, इसका मतलब बताया था मैंने आपको. The near point for the person is farther away from the normal near point. Such person have to keep a reading material such beyond 25 from the eye for comfortable reading. This is because the light ray from a close by object are focused at point behind the retina. तो ये रेटिना पे बननी थी, रेटिना से पीछे बनती है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिहाइंड द रेटिना बनती है. जस्ट फॉर डायग्राम पर्पस के लिए आप जा सकते हो. दिस डिफेक्ट इज अलाइज ड्यू टू, अब उसमें जैसे फोकल लेंथ आपकी क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, यहाँ पे फोकल लेंथ इंक्रीज होगी. द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज टू लॉन्ग, ठीक है, एंड द आई बॉल इज टू शॉर्ट. ठीक है, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर पॉजिटिव ऑफ एप्रोप्रिएट पावर. दिस इज इलस्ट्रेटेड in the figure जो आपको दिखा रखे, this one and this one. Eye glasses with a converging lens provide the additional focusing power required for forming the image on the retina. ठीक है, next is last effect, that is presbyopia. The power of accommodation of an eye usually decrease with aging. जैसे जैसे आप बूढ़े होते रहते हो आपकी एज इंक्रीज करती रहती है, आप ओल्ड होते रहते हो, तो आपका क्या होता है कि आपकी जो देखने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है. तो वाई, फॉर मोस्ट ऑफ पीपल द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिड्यूस अवे, मतलब डिक्रीज इंक्रीज होने लगता है. सॉरी 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 डिक्रीज होने लगता है, मतलब आपको पास रखना पड़ेगा. They find it difficult to see nearby objects comfortably and distinctly without correcting eyeglasses. This defect is called presbyopia. It arises due to a gradual weakening of ciliary muscle. तो cause क्या है इसका, इसका जो कॉज होता है वो होता है वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल एंड डिमिनिशिंग ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस. समटाइम अ पर्सन मे सफर फ्रॉम बोथ बायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया. तो प्रेस बायोपिया इज अ कंडीशन जहाँ पे पर्सन दोनों से सफर कर रहा है. सच पर्सन ऑफर रिक्वायर बायफोकल लेंस. तो इसकी करेक्शन के लिए कैसे चाहिए होता है, बायफोकल लेंस, जिसमें क्या होता है, इसका डायग्राम कुछ ऐसा सा बना सकते हैं आप लोग. ये आपका कॉन्वेक्स है और ये आपका कॉनकेव हो जाएगा. ठीक है, तो ऐसा लेंस जहाँ पे दोनों आपका हो गया. आपने देखा होगा कहीं चश्मों में, कहीं स्पेक्टिकल्स में एक लेंस ऐसा होता है जिसमें नीचे से अलग से आपको सेमी सर्कल सा दिखता है ना, तो ये ही लेंस होते हैं, बायफोकल लेंस होते हैं वो. द अपर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ अ कॉनकेव, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, इट फैसिलिटेट डिस्टिंक्ट विजन. द लोअर पार्ट इज कॉन्वेक्स, इट फैसिलिटेट द नियर विजन. These days it is possible to correct the reflective defects with the contact lenses and through a surgical intervention. तो आजकल आप लोग लेंसेज भी लगा सकते हैं या फिर आप लोग सर्जरीज भी करवा सकते हैं फॉर द करेक्शन. व्हाट इज पावर ऑफ अकोमोडेशन, कि आपकी एबिलिटी कितनी है आई लेंस की ताकि वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सके. अ पर्सन विद अ मायोपिया आई, मायोपिया मतलब नियर साइडनेस है और कॉनकेव मिरर की जरूरत पड़ेगी, दे नॉट सी
ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर, उसके बाद के ऑब्जेक्ट नहीं देख सकता। व्हाट शुड बी टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, टू रिस्टोर द विजन। कॉनकेव, what is the far point and near point? Far point is infinity, near point is 25 centimeter. A student have a difficulty in reading the blackboard while sitting in the last row. लास्ट रो में देखेगा तो मतलब उसे दूर से नहीं दिख रहा है, जबकि पास से उसे दिख जाएगा। तो दूर चीज में प्रॉब्लम है, पास में तो मायोपिया है उसे, मायोपिया ना, ताकि उसे पास का दिख रहा है, दूर से नहीं दिख रहा। तो दिस कैन बी करेक्ट बाय कॉनकेव। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगेन मैं कहूंगा 100% क्वेश्चन आने के चांसेस है ना, या तो इससे आएगा या डिफेक्ट से आएगा। We have learned how light that is reflected through a rectangular glass slab. For parallel reflecting surfaces as in a glass slab, the emergent ray is parallel to the incident ray. However, it is slightly displaced laterally. How would light get reflected through a transparent prism? Consider a triangular glass prism. It is a triangular basis and three rectangular lateral surfaces. These surfaces are inclined to each other. The angle between the two lateral forces is called the angle of prism. The angle of prism की definition आती है तो क्या होता है? The angle between the two lateral faces. ठीक है? Let us now do an activity to study the reflection of light. This activity is very important activity. ठीक है, यहाँ से पूरा ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछता है बोर्ड। Straight and illustrate with the help of an activity to show the dispersion of light through a prism. ठीक है, तो मेक श्योर कि आपको एक्टिविटी आनी चाहिए। इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिंपल बोला गया है कि एक प्रिज्म लीजिए एबीसी, जिसका एंगल ए होना चाहिए। ठीक है, एंगल ए प्रिज्म का एंगल होगा। देन आपने एक लाइट रे पास करनी है प्रिज्म से, और यू विल नोट द पैटर्न ऑफ लाइट रे। पिंस लगाते हैं हम लोग इसको ऑब्जर्व करने के लिए, एंड देन यू विल सी कि आपके पास जो लाइट है वो डिफरेंट बेंड हो रही है, डिफरेंट वे में। आपको देन एंगल्स मार्क करने होते हैं। यहाँ पे जो एंगल इंपॉर्टेंट होता है वो होता है एंगल ऑफ, दिस इज डेविएशन, एंगल ऑफ इमर्जेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ प्रिज्म। ये इंपॉर्टेंट एंगल्स होते हैं जो कि आपको मार्क करने हैं। रेस्ट आपको अपनी लैंग्वेज में एक्टिविटी को लिख के आना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, दो पिन्स लगाते हैं। एक पिन हम यहाँ लगाएंगे, देन हम यहाँ लगाएंगे। तो उस पर हम लोग यहाँ से देखने ट्राई करते हैं तो हमें पिन्स यहाँ पे दिखाई देती है, यहाँ मार्क करके हम लोग इसे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो दिस इज जो कि आपको पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। इसे रीड करवाने का यहाँ कोई फायदा नहीं है, आपको खुद एक बार रीड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको समरी बता दी, इसमें लिखा हुआ क्या है। Here P is the incident ray, मतलब जो भी इंसिडेंट रे होगी। EF is a reflected ray and FS is a emergent ray, emergent ray जो बाहर निकल के आई। You may know that the ray of light is entering from air to glass as it the first surface. So air to glass, rare to denser, toward the normal. ठीक है, the light will bend toward the normal. At the second surface, the light is entering from glass to air, away the normal जाएगी, hence bent away from the normal. Compare the angle of incidence and the angle of reflection at the each reflecting surface. तो आपको यहाँ पे स्नेल्स लॉ फॉलो हुआ दिखाई देगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन तो यहाँ पे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर तो हो नहीं सकता। हाउएवर रेशियो बिल्कुल सेम रहेगी। ठीक है, the peculiar shape of prism makes the emergent ray bend at the angle of direction of incident ray. The angle is called the angle of deviation. In this case, angle D is the angle of deviation. Marks the, अच्छा एंगल डी भी हो सकता है, या फिर द सिंबल ऑफ डेविएशन इज दिस ऑल्सो। ठीक है, ये भी डेविएशन का सिंबल होता है। मार्क्स द एंगल ऑफ डेविएशन इन द अबव एक्टिविटी एंड मेजर इट। ठीक है, dispersion of white light through a glass prism. अगर जब आप ग्लास लाइट प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास करते हो तो यू विल सी अ बैंड स्पेक्ट्रम ऑफ अ 7 डिफरेंट कलर। एक स्पेक्ट्रम मिलेगा, दैट इज अ बैंड ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स, दैट इज विबग्योर। रेनबो कलर्स होते हैं, वी आई बी, वी आई बी जी वाई ओ आर, इन दिस ऑर्डर। ठीक है, आपको ये टॉप पे मिलेगा, जबकि ये आपको बॉटम पे देखने को मिलेगा वॉयलेट कलर। ठीक है, तो कलर के नेम क्या है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट। You must have seen and appreciated the spectacular color in the rainbow. How could the white light of a sun, इसका मतलब क्या है, sun is made up of white light, give us a various color of rainbow? Before we talk to up this question, we shall first go back to the reflection of light through a prism. The inclined reflecting surface of a glass prism show exciting phenomena. Let us find it out through an activity. एक्टिविटी में क्या है कि एक प्रिज्म लीजिए, व्हाइट लाइट को पास कीजिए, एंड में स्क्रीन रख दीजिए। यू विल सी अ पैटर्न ऑफ 7 डिफरेंट कलर। हमारे चैनल पे ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटल वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, लिंक ऐड कर देगा इसका। The prism has probably split the incident white color into a band of color. This is called dispersion of light, splitting of light into its component color. Note the color that appear at the two ends of the color band, मतलब ऊपर और नीचे. What is the sequence of color that you will see on the screen? The various colors seen is violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. As in the acronym, मतलब abbreviation या फिर trick कह सकते हो. Vibgyor and will help you remember the sequence of colors. The band of colored components of the light beam is called spectra.
या फिर स्पेक्ट्रम. You might not be able to see all the colors separately, yet something makes each color distinctly from each other. The splitting of light into its component color is called dispersion. This is a definition to dispersion, that splitting of light into its component color या फिर constituent colors. You have seen that the white light is dispersed into 7 color component by prism. Why do we get these colors? Different colors of a light bends at through a different angle with respect to the incident ray as they pass through prism. The red light bends the least. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं. जो रेड लाइट होती है, जो उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम होता है, ठीक है, लीस्ट होता है और ये मैक्सिमम होता है. जबकि वॉयलेट की बात करूं मैं, वॉयलेट के लिए लैम्डा मतलब वेवलेंथ सबसे कम होती है और जो आपकी डेविएशन होती है वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है. दैट इज वाई रेड कलर इज यूज इन अ डेंजर सिग्नल, क्योंकि रेड कलर जो होता है विदाउट स्कैटरिंग, बिना बिखरे हुए दूर तक जाने की टेंडेंसी रखता है, तो आपको बहुत दूर से डेंजर सिग्नल्स दिखाई देते हैं. दैट इज वाई डेंजर सिग्नल्स आर मेड रेड, बिकॉज रेड कलर हैव अ हाईएस्ट वेवलेंथ एंड लीस्ट स्कैटरिंग पाथ. You have seen the white light is dispersed into, अच्छा ये हमने कर दिया. The red light bend the least while the violet is most. Thus the ray of each color emerge along a different path and thus become distinct. अलग-अलग. It is the band of distinct colors that we see spectra. Isaac Newton, वही न्यूटन है जो पहले न्यूटन पढ़े आप लोगों ने, was the first to use the glass prism to obtain a spectra of sunlight. ठीक है, इन्होंने सबसे पहली बार ये चीज करी थी. इन्होंने उसका रिवर्स भी करके देखा था. He tried to split the color spectra of a white light further by using another similar prism. However, he could not get any more color. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, 7 कलर्स को पास भी प्रिज्म रख दिया. मतलब सपोज इन्होंने यहाँ पे भी एक प्रिज्म लगा दिया, तो इंस्टेड को इनको और कलर मिलने में क्या होगा कि एक कलर मेरा व्हाइट कलर जो कि यहाँ पे दिखा रखा है इन्होंने, ये वाला, ठीक है. He placed the second identical prism in the inverted position with respect to the first prism as shown. This allowed all the color of spectra to pass to the second prism. He found a beam of white light emerging from the other side of second prism. This is an important experiment. ये पूछा जाता है, ठीक है. This observation gave Newton the idea that sunlight is made up of 7 colors. Any light that gives spectra similar to the sunlight is offered to be referred to as a white light. ठीक है. A rainbow is a natural spectra. तो natural spectra का example क्या है? Rainbow in the sky after rain shower. It is caused by the dispersion of sunlight by the tiny droplets present in the atmosphere. तो जो tiny droplet होती है वो prism का काम करती है. The rainbow is always formed in a direction opposite to the sun. So this is a condition for rainbow formation कि सबसे पहले तो एक तो moisture होना चाहिए, water droplets होनी चाहिए, and sun should be opposite to the observer. मतलब अगर जी मैं वहां सामने देख रहा हूँ, मेरे को सामने रेनबो दिख रहा है, तो सन मेरे पीछे होना चाहिए. दे रिफ्लेक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट लाइट, दे रिफ्लेक्ट इट इंटरनली. मतलब सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या हो रही है, दिस इज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज. ये जो ये है, ये यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुई है, ठीक है. इंटरनल जो बेंडिंग हुई है ये TIR है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और ये जो ये हुई है ये आपकी डिस्पर्सन आई है, ठीक है. And finally reflect it again when it comes to a rainbow. Due to the dispersion of light and internal reflection, different color reaches the observer's eye. ठीक है, तो तीन चीजें लेबल करने को आ जाती है कई बार पेपर में, तो मेक श्योर आपको पता होना चाहिए. ऊपर रिफ्लेक्शन है, अंदर TIR हो रही है और लास्ट में डिस्पर्सन की वजह से पैटर्न आ रहा है. You can also see a rainbow on a sunny day when you look at the sky through a waterfall and through a water fountain with the help with the sun behind. ठीक है, तो सन की जो कंडीशन है, सन आपको हमेशा पीछे होना चाहिए, then only you will be able to see the ऑल द स्टफ जो भी आपको देखना है. इसके बाद हमारे पास कितना चैप्टर रहता है, थोड़ा सा चैप्टर रहता है. सो आई एम थिंकिंग कि रेस्ट ऑफ द पार्ट हम लोग पार्ट 2 में करते हैं. आधे घंटे का भी नहीं, 25 मिनट का सेशन बना है, बहुत है, ठीक है, क्योंकि चैप्टर छोटा है, 2 पार्ट में कवर करते हैं आराम से. और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में पार्ट 2 ऑफ ह्यूमन आई के साथ. नहीं तो इसे एक में भी कर सकते थे, 1 घंटे का लेक्चर बनेगा, बट कोई फायदा नहीं है. इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, वेटेज अच्छी है इस चैप्टर की. तो इसे अच्छे से कीजिए. अगर आपको कोई डाउट आते हैं तो आप हमारे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. अदर देन दैट आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. उसके थ्रू आप हमारे सारे मटेरियल, स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है. सो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं. जस्ट विल कंटिन्यू टुमारो एंड कल मिलते हैं. अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए.